Hello everyone. Hello my dear students. So again we are going to start today our chapter second, that is Dicks, Winston's and Cat. Okay, page number 5 of your textbook. Before starting the lecture, we have some warm-up exercises. Let's start with it. Discuss the following in groups and write the answers. So you have to discuss it, which famous personalities they have shown you in the pictures. You have to write the names, and first you have to write the name of the famous personality. First one is APJ Abdul Kalam, then Kalpana Chawla, Charlie Chaplin, and this is Einstein. So you have to write the names. Next, guess the type of hardships they must have faced in their childhood and youth. So what hardship they have faced? First, they might be facing the financial problems. Then they might be facing they are having lot of they struggle for their food, daily needs, and then they have no school, no fees for their schooling, and no they don't have proper taking care parental who can take care of them. So there are many hardships that they faced. You have to write this warm up part by your own. Okay, so after warm up, the next we are going to go on the chapter, that is Dix, Winston and his cat. Let's see what this chapter tells us about today. And okay, let's begin the chapter. Page number 6. Keep your finger where I am reading. There was once a poor boy called Dick Winston who lived in a small village in the south of England. So, this chapter is about a boy whose name is Dick Winston, and he lived in a small village in south of England. He had no proper home, for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. So he was not having the home because his parents died, and he was treated very badly by the villagers because unkindly, because he was not having parents, no home, no one was going to take care of him. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. So what happened? अ, एक बार ऐसे हुआ, डिक ने ओवरहर्ड किया, उसने किसी की बात सुनी कि लंदन में जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे गोल्ड ऐसे नीचे लगा हुआ है, पाउफ्ड है। एंड अगर मैं कोई वो सोचता, अगर मैं लंदन जाऊंगा, वो स्ट्रीट पे से वो गोल्ड पीस लेकर आऊंगा, मैं बहुत रिच पर्सन बन जाऊंगा और लोग मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे क्योंकि मैं एक रिच पर्सन हूँ। अब रिच लोगों को लोग अच्छी तरीके से ट्रीट करते। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। सो डिक ने क्या किया, वो लंदन चलते चलते जाने का उसने डिसाइड कर लिया। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. So what happened? कि वो थोड़ी दूर तक ही गया था, तो एक कार्ट वाले ने, एट दैट पीरियड हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट, ऐसे कार्ट्स यूज होते थे। तो उसने उनसे रुकाया और पूछा कि क्या तुम घर से भाग रहे हो? आई हैव नो होम, डिक आंसर। डिक ने आंसर किया कि मेरे पास तो घर ही नहीं है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स किस्मत, ओके, लक। सो व्हाट डिड ही सेड कि मेरे पास तो घर नहीं है और मैं लंदन जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी लक आजमा सकूँ। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, मैं खुद से ही लंदन जा रहा हूँ। सेड द मैं भी लंदन जा रहा हूँ, सेड द कार्टर।
मीन्स जो उसका ड्राइवर था वो कार का, उसने बोला कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ, जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। वो बोलता ठीक है तुम अंदर आ जाओ, अब हम साथ में मिलके वो जर्नी कंप्लीट करेंगे, मतलब हम साथ में मिलकर लंदन तक पहुंचेंगे। दे अराइव्ड इन लंदन just before nightfall and the carter left Dick and made him way to an inn. So वो जैसे ही वो नाइट मीन्स आधी रात तक वो लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने के बाद वो कार वाले ने उसको डिक को ड्रॉप किया और वो अपने लिए एक रेस्टोरेंट में चला गया। Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. बेचारा वो डिक उसको देख रहा था अकेले खड़े रह के, और डिसमे मीन्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट कि उसने उसको खाने के लिए भी चलो नहीं बोला। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, फिर वो सुनने गा रहे वो सारा गोल्ड कहाँ है। ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। उसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि वो स्ट्रीट पे बहुत सारी घाट थी, बहुत डर्टी था वो स्ट्रीट, और बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली पीपल थे, मतलब जो अनफ्रेंडली पीपल मीन्स बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे। ही हैड नो वेयर टू स्लीप and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. So पूरे वो ना डिक के पास घर था, ना खाने के लिए पैसे थे, सो ही हैव टू स्पेंड द नाइट। उसको वो नाइट स्ट्रीट पूरी रात वो स्ट्रीट पर ही रहना पड़ा, और वो एक ऐसी जगह एलिमेंट से कॉर्नर पे जाकर सो गया ताकि उसको कोई हार्म ना करे। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। अगली सुबह डिक एकदम ठंडी से मिजरेबल, एकदम परेशान और एकदम टेंशन से उठा, और वो बहुत ज़्यादा हंग्री था। ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड। वो मतलब इधर से उधर फिर रहा था फूड के लिए। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम। बार उस पर लोगों ने क्या किया, चिल्लाए। गो अवे यू लेजी फेलो। सबने ये क्या बोले, आलसी इंसान जाओ यहाँ से, यू आर वेरी लेजी, गो अवे। बी ऑफ विथ यू एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट इट्स हेड। सो कोई बोला निकलो, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कोई उसको जोर से उसके हेड पे मार रहा। At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. एक पॉइंट आया जहाँ पे डिक इतना ज़्यादा वीक हो गया कि वो गिर गया, कोलैप्स्ड हो गया, एंड और उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो जाके फूड देखे, मतलब ढूंढे। बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवान। सो वो ऐसी जगह गिरा जहाँ पर एक ऐसे घर के सामने गिरा जो एक रिच मर्चेंट का घर था, उसका नाम था फिट्जवारन। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, मतलब क्या कर रहा था, जो फिट्स का कुक है वो ड्रिफ्ट को हकाल रहा था। When Mr. Fitzwan returned home from inspecting his ships, he stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" "I will work," said Dick. मिस्टर फ्रिट्ज ने बोला कि तुम काम क्यों नहीं करते, जब तुमको खाने की इतनी ज़रूरत है, तुम काम क्यों नहीं करते। डिक बोलता मुझे काम करना है, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। वो बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं पता कि कोई मुझे काम देगा, या मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता ताकि वो मेरे को काम दे सके। सो next page, take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. So cook को Mr. Fitzwarren ने order किया कि इसको kitchen में लेके जाओ। सबसे feed him first and then find some work for him. सबसे पहले तुम इसको खाना देंगे और उसके बाद उसके लिए कुछ काम ढूंढेंगे। So Dick was given a home and a living. Dick को एक घर दिया गया था और वहाँ पे एक लाइफ दी गई थी।
He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. So डिग को एक छोटा सा कॉर्नर दिया गया था, एक छोटी सी जगह दी गई थी जहाँ पे वो सो सकता था, और उसको जॉब ये थी कि वो किचन में जो कुक है उसके साथ पॉट्स और पैन्स धोने में रखने में हेल्प करे. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. डिक की लाइफ पहले से थोड़ी सी बेटर थी, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में बहुत ऐसी दो डिफिकल्टीज थी. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. जो उसको कॉर्नर दिया गया था सोने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे रैट्स और माइसेस थे. At time they scampered all over him and keep him awake. वो हर बार उसके ऊपर से भागते जाते थे, चलते जाते थे, और उसको नींद ही नहीं आती थी. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. फिर जब उसको पेमेंट मिली, उसने सबसे पहले क्या किया, ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन, उसने खुद के लिए कैट बाई की. In no time at all, the cat chased all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. बहुत कम टाइम में कैट ने क्या किया, सारे रैट्स और माइस को भगा दी और डिक आराम से सोने लगा. The other difficulty, which was not so easy to overcome, was the cook's bad temper. जो दूसरी डिफिकल्टी थी डिक की, ये थी कि डिक जो उसका कुक था वो बहुत बैड टेम्पर था, मतलब वो बहुत चिल्लाते रहते थे, बहुत गुस्से वाली थी. शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे. वो हर पूरा दिन चिल्लाते रहती थी, और एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून. और उसको डांटते रहती थी और उसको वुड के चमचे से मारते रहती. इवन वेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड. जितना भी वो हार्ड वर्क करे, फिर भी उसको रोज डांटी और रोज मार पड़ती थी. वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इन नो मोर. मतलब एक दिन उसने ऐसे डिसाइड किया कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकता. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. So वो क्या बोलता, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, और वो अगले ही दिन जाकर किसी वो और उसकी कैट कहीं और जाके अपना लक ट्राई करें. The two of them walked as far as Holloway on their way out to London. Then Dick sat down on a stone to rest. फिर डिक ने क्या किया, डिक वो लोग लंबा वॉक किए और पूरी स्ट्रीट्स पर वॉक किया, और डिक एक स्टोन पर बैठ गया. इट वॉज 1st of November. वो डेट 1st of November था. ऑल सेंट्स डे एंड द चर्च बेल्स वेर रिंगिंग. जो पूरे सेंट्स है ना चर्च में गैदर हुए थे, और बेल क्या हो रही थी, रिंग हो रही थी. As Dick sat and listened, it seemed they were singing out a message for him. जैसे डिक बैठा और उसे सुन रहा था, तो डिक को क्या लगा कि डिक thought that the message was for him. डिक को लगा कि वो मैसेज डिक के लिए. Turn again. The message was, क्या सॉन्ग आ रहे थे, क्या रिंगिंग हो रहा था, Turn again Pittington, though worthy citizen, Lord Mayor of London. Lord Mayor of London, said Dick. I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. Dick सोचता कि मैं ना लॉर्ड मेयर होना चाहिए लंदन का, और मैं एकदम अच्छी सी कोच पे राइड करूँगा. I can put up with a few scolding from the cook if that is what is in store for me. वो बता कि अगर मुझे लॉर्ड मेयर बनने के लिए तो कुक की थोड़ी डांटी खानी भी पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं डांटी खा लूँगा. So Dick and his cat retraced the steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily they were able to slip
back before they had been missed. मतलब वो सबके उठने से पहले आराम से आकर अपने रूम में बैठ गया. Now Mr. Fitzwarren used to send ships for across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in far away places, and then they would bring back goods that could be sold at home. So विट्सपैरन का क्या बिजनेस था? वो शिप्स के थ्रू गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस सेल करते थे. एंड ही यूज टू जो जो गुड्स बिक गया वो गुड्स का अच्छा खासा अमाउंट आता था. वन डे he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on to? वो अपने घर के सारे वर्कर्स को, हाउस होल्ड्स को जमा करता और फिट्स एंड उनको बोलता कि मैं अफ्रीकन कोस्ट पे अपनी शिप भेज रहा. क्या कोई चाहता है कि अपने घर कुछ भेजे या किसी के पास कुछ है जो वो शेयर करना चाहता है? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वॉयजेस इज सक्सेसफुल. अगर बिजनेस के लिए भी कोई कुछ देना चाहता है तो वो दे सकता है. वो अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो हम उसे उसका अमाउंट देंगे. एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक्स who had nothing to offer. सबने कुछ ना कुछ दिए पर डिक्स ने कुछ भी नहीं, बिकॉज डिक्स के पास कुछ नहीं था. Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly. फिट्जवैरन ने उनसे पूछा, बेटा आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए? आपका खुद का यू हैव नथिंग? एंड डिक रिप्लाइड, ओनली माई कैट. वो बोलता कि सिर्फ मेरे पास मेरी कैट है. देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेंड मिस्टर फिट्जवैरन. सो फिट्जवैरन क्या बोलता कि ठीक है, तुम्हारी कैट को शिप पर जाने दो. His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. So Alice क्या बोलती फिट्जवैरन को कि डिक्स को कैट बहुत पसंद है, मैं उसकी तरफ से कुछ डाल देती. बट her father said, No, it must be his, not something belonging to someone else. फिट्ज बोलता नहीं, तुम नहीं डालेंगे बिकॉज ये उसका होना चाहिए, किसी और का नहीं. So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had rats and mice on his voyages. तो डिक क्या करता, वो कैट को दे देता और उसको गुड बाय बोलता एकदम सैडली. कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि कैट हमारे अगर शिप में रहेंगी तो कोई भी चूहे हमारे गुड्स को हार्म नहीं करेंगे. After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people call the Moors lived. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale, and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in. But almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. So जैसे कैप्टन किंग के पैलेस में गया तो वो अपनी चीज़ें बताने लगा. जैसी वो चीज़ें बताने लगे तो कैप्टन के लिए किंग और क्वीन ने कुछ खाने के लिए अरेंज करे थे. जैसे खाने का प्लेट सामने ही माइस और रैट्स भाग कर आए और वो खाने की प्लेट में से खाना खा लिए कैप्टन के सामने. द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंड. कैप्टन एकदम परेशान हो गया कि अभी ये प्लेट रखे और इतनी जल्दी इतने सारे चूहे और माइस आके ऐसे कैसे खा सकते हैं? नॉर्मली ऐसा होता है क्या? Alas, yes came the reply. तो किंग ने बोला हाँ
ऐसा ही हो रहा है. The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. वो बोला कि हमारी कंट्री प्लेग की वजह से, प्लेग इज नेम ऑफ अ डिसीज जो माइस और रैट्स की वजह से कॉज हुई. तो हमारी कंट्री में प्लेग है और हम लोग इनसे बिल्कुल भी रेड नहीं हो रहा, हम इनसे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा रहे. आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप. वो बोलता सेट द कैप्टन. कैप्टन बोलता कि इसका आंसर मुझे मेरे शिप पर है. एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस. सो कैप्टन ने अपने को वर्कर्स को मैसेज भेजा कि डिक्स की जो कैट है वो पैलेस में लेकर. मोर फूड वॉज लेट out and the cats and mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" So, what happened? Uh, अब जैसी डिक्स की कैट को पैलेस में लेकर आया और खाना रखे, जैसी खाना रखे बहुत सारे रैट्स जमा हो गए. जैसी रैट्स जमा हो गए, ये कैट ने वो डजन्स ऑफ रैट्स को एक साथ पकड़ के उसको किल करते गई और उसी तरह थोड़े रैट्स की क्वांटिटी कम होने लगी. तो किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा खुश हो गए. तो क्वीन पूछती कि आप ये रैट को क्या बुलाते. पुस is the name she answered to, said the captain. And when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. So कैप्टन बोलता कि इसका नाम पुस है और क्वीन जैसे ही पुस पुस बोलती तो कैट उसके पास जाती और उसको लीक करने. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat had. तो क्वीन एकदम परेशान हुई कि मेरे इतनी जल्दी आवाज़ देने पर कैट कैसे आ गई करके. Attack the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people. So क्वीन थोड़ा कैट से डरने लगी थी, बट कैप्टन बोलता कि डरो मत, पुस पीपल के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती and could soon rid your kingdom of rats and mice. और ये बहुत जल्द आपके किंगडम के रैट्स और माइस को ख़त्म कर देंगी. I will give great wealth to own this animal, said the queen. So वो बोलती कि मैं ना ये एनिमल को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे दूंगी करके. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone, the king paid 10 times the sums again. So कैप्टन बार्गेनिंग करते करते बार्गेनिंग किंग एक ऐसे नतीजे पे पहुंचता कि फिट्जवैरन के लिए जो किंग है वो एक शिप का कार्गो की शिप खरीद कर उसको प्राइस में दे देता. When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant said for Dick, "From now on, Dick," he said, "we should all call you Mr. Winton, for you are a rich man." So कैप्टन जैसे ही पोर्ट पर आता वो मिस्टर फ्रिट्ज को गोल्ड्स और ज्वेलरीज देता एंड वो पूरी कैट की स्टोरी बताता. एंड जैसे ही वो डिक के पास जाता तो डिक को बोलता कि आज से तुम बहुत रिच मैन बन गए हो. मिस्टर फिट्जवैरन देन पेड हिम ऑल द मनी कैप्टन हैड रिसीव फ्रॉम द कैट. सो मिस्टर फिट्जवैरन ने जो भी पैसा उसको किंग ने दिया था वो कैट के बदले वो डिक को दे देता. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice
and 3 times he was elected Lord Mayor of London. So उस दिन के बाद से डिक मिस्टर फिट्जवैलन के साथ काम करने लगा और वो एक अच्छा मर्चेंट बन गया। देन उसने मिस्टर फिट्जवैलन की डॉटर से शादी किया और वो 3 बार इलेक्ट हुआ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन के लिए। ही वॉज ऑल्सो इंटाइमनाइटेड बाय द किंग एंड बिकम सर रिचर्ड विंडसन। सो वो बहुत हाईली ऑनर्ड हो गया था एंड उसका नाम पड़ गया था सर रिचर्ड विंगस्टन। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। वो सिर्फ फेमस नहीं था, वो पॉपुलर भी था। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी। सो वो पॉपुलर होने के साथ साथ, फेमस होने के साथ साथ वो पुअर लोगों की हमेशा हेल्प करता। Sometime when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. So वो जब ओल्ड हो गया वो अपनी स्टोरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताता कि उसके कैट के वजह से और उसके जो बेल्स है लंदन में, जो चर्च में बेल बजे थे, उसके वजह से वो आज कहाँ पहुँच गया। सो द टर्न अगेन विंगस्टन दो वर्दी citizen Lord Mayor of London. Okay, these are the words. The next we will you have to solve this. Remove the affix and write the root word. Okay, here we have to write the root words. Successful, the root word of successful is success. Okay. Retrace, trace. Immediately, immediate. Mouse, mouse. Okay. These are the root words because we have in this we have to find the real word. Okay. Successful. So the real word is success. Immediately, the real word is immediate. Retrace, trace. Mouse, mouse. Okay. In the homework, you will read the chapter, learn and write meanings which are given on the side columns, and you will learn and write question number A, B 3 times, and write the summary of the chapter. Means chapter at glance लिखना है आपको कि आपको इसमें क्या समझा and about Dick Fitzwarren and the process of the cat. Okay, so thank you and I will see you in the next lecture.